النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم بسم الله الرحمن الرحيم روي عن فاطمة الزهراء سلام الله عليها أنها قالت دخل علي برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بعض الأيام فقال لي يا فاطمة إني لأجد في بدني ضعف فقلت أعوذ بالله يا أبد من الضعف فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني وغطني فقالت فاطمة سلام الله عليها فأتيته بالكساء فغطيت به فصرت أنظر إليه فإذا وجهه طلال والنور كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم قالت فاطمة سلام الله عليها فما كان إلا ساعة وإذا بفلة الحسن عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقد عليك السلام ويا قرد عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أمه أن يشفع عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك نائم تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء يقول السلام عليك يا جدا السلام عليك يا رسول الله تأذن لي أدخل معك تحت هذا الكساء فقالوا نعم فإن طلق فدخل الحسن عليه السلام معه تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم قالت فاطمة سلام الله عليها فما كانت إلا ساعة وإذا بفلة الحسين عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقد عليك السلام يا قرد عيني وثمرة فؤادي فقال يا أم إني أشبع عندك رائحة طيبة كأنها رائحة رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك فأخاك نائما تحت هذا الكساء فأدان الحسين عليه السلام نعم الكساء يقول السلام عليك يا جدا السلام علي من افطار ولا تأذن لي أن أقول معكم تحت هذا الكساء فقال له نعم قد إن لك يا حسين فدخل معمل حسين تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم قال فاطمة عليها السلام وما كان ساعة وإذا بأبرس عليه السلام قد أقبل فقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقد عليك السلام يا أمين المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشرب عندك رائحة طيبة كأنها رائحة ابن عم رسول الله فقلت نعم وما ولديك نعم تحت هذا الكساء فأقبل عنه ليس له نعم الكساء ولم علي من افطر وتأذن لي أنا أدخل معكم تحت هذا الكساء قال رضيت لك فدخل علي معهم تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم قالت فاطمة سلام عليها ثم عبدنا والكساء والسلام عليها السلام علي يا رسول الله تأذن لي أن أدخل معكم تحت هذا الكساء قال أذن لك فدخلت معهم تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم قال فاطمة فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء قال العالم يا ملائكة وسكر سماوات وعزتي وجلالي إنما خلقت سماء مبنية والأرض مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا بمحمد هؤلاء الذين هم تحت الكساء
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فقال جبريل عليه السلام يا رب من طال الكساء؟ قال الله تعالى على بيت النبوة ومعد رسالة فاطمة وأبوها وبالها وبنوها. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فقال جبريل يا رب تذكرنا نبتل الأرض ليكون موتا؟ فقال لم تعالى نعم قد أذن لك فأمر من جبريل وأقبلنا والكساء والسلام علي يا رسول الله. السلام علي من اطاع الله إن الله عز وجل يخلق السلام وخطب التيد والإكرام ويقول لك فعدت بجلالين ما خلقت وأما بنيت والأرض دعيت لك أمرا وليا صمد لك أن يدور البحر يجري ولا فرق يسري إلا لأجل محبتك وقد أذن اليوم ما كنت هذا الكساء فهل تدري أنت يا رسول الله أنا أدخل معكم فقد أخذت لك وذاق جبريل معهم تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. وقال له إن الله عز وجل عليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس على البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فقال عليه السلام يا رسول الله أخبرني ما الجلوس هذا تحت الكساء من الفضل عند الله تعالى. فقال النبي والذي بعث بالحق نبي استفاني بالرسالة الذي ما ظهر خبرنا هذا في محل محافل أهل الأرض وفي جمع من شيعتنا محبنا إلا ونرى الرحمة وأقدم الملائكة واستغفر لهم إلى أن يتفرقوا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فقال علينا عليه السلام اللهم فدنا وسعدنا وكذلك سيدنا فاطمة وسعدوا ورب الكعبة. فقال رسول الله والذي بعثني بالحق نبي استفاني بالرسالة نجي ما ظهر خبرنا هذا في محل محافل أهل الأرض وفي يوم من شيعتنا في مولى الله وفر الهمة ولا مغفر الله وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وفضل حاجته. فقال عليه الله فضلنا وسعدنا وكذلك سيدنا فاطمة سعدوا في الدنيا والآخرة. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اني اسالك بحق محمد وانت المعبود وبحق علي وانت الاعلى وبحق فقدمة وانت فاطر السماوات والارض وبحق الاذن وانت المحسن وبحق الاذن وانت قديم الاحسان وبحق الائمة التسعة الطاهر من ذر الحسين عليه السلام. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم ادخل على للقبور السرور. اللهم اغن كل فقير. اللهم اشبع كل جاع. اللهم اقص كل عريان. اللهم اقض دين كل مدين. اللهم فرج عن كل مكروب. اللهم رد كل غريب. اللهم فك كل أسير. اللهم اصلح كل فاسد من أمور المسلمين. اللهم اشف كل مريض. اللهم سد فقرنا بغناك. اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك. اللهم اجعلنا الدين واغننا من الفقر انك على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى
पर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि हाय हैदर के जनाजे पे अजब मंज़र था, बेटियां कदमों से लिपटी थी, बसद होगा बढ़ के शबर ने जो चेहरे से कफन बंद किया, देख कर भाई के चेहरे को ये ज़ैनब ने कहा, रुख से कमर और हटा दो भैया, मेरे बाबा का मुझे चेहरा दिखा दो भैया, मेरे बाबा का मुझे चेहरा दिखा दो भैया। आज बाबा जो मेरे घर से चले जाएंगे, फिर मुझे शाम में गरीबा में नजर आएंगे, इतने दिन कैसे गुजारूंगी बता दो भैया, मेरे बाबा का मुझे चेहरा दिखा दो भैया, मेरे बाबा का मुझे चेहरा दिखा दो भैया। जैसे अम्मा की रिदा में थी शिफाना की, क्या ये मुमकिन है कि उठ जाए मेरे बाबा भी, मेरी चादर मेरे बाबा को दो भैया, मेरे बाबा का मुझे चेहरा दिखा दो भैया, मेरे बाबा का मुझे चेहरा दिखा दो भैया। कैसे बतलाऊं ये दिल गम से फटा जाता है, क्या जुदा बाप से होकर भी जिया जाता है, अपनी बहनों को फकत इतना बता दो भैया, मेरे बाबा का मुझे चेहरा दिखा दो भैया, मेरे बाबा का मुझे चेहरा दिखा दो भैया।
हाय शबीर से ज़ैनब ने कहा रो रो कर, सूना लगता है आमे के बिना का सर पे बाबा के अमा तो सजा दो भैया, मेरे बाबा का मुझे चेहरा दिखा दो भैया, मेरे बाबा का मुझे चेहरा दिखा दो भैया। खून जबी से वो गिरा था जिस पे, अपने बाबा की निशानी में बना लूंगी उसे, मेरे बाबा का मुसल्ला मुझे ला दो भैया, मेरे बाबा का मुझे चेहरा दिखा दो भैया। है गम में बाबा के तड़पता है, जरा देखो तो दूर बैठा है बुलाता मेरे गाजी को, पास कुछ देर तो बाबा को बिठा दो भैया, मेरे बाबा का मुझे चेहरा दिखा दो भैया, मेरे बाबा का मुझे चेहरा दिखा दो भैया। और मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पीछे है उनसे होता हुआ है दिमाग से दोबारा थोड़ा अच्छी जाना आगे, तो हम आगे आ जाएंगे ताकि खतीब को भी आपको खिताब करने में लुत्फ आएगा और आपको भी मजलिस का लुत्फ मिलेगा। मुझे चूंकि मौलाना ने ही हुक्म दिया है, या तो मैं चंद शेर हासिल करता हूँ। समा करवाए कि वो एक भरोसा जो शहने जौन के रुख पर सजाया है, वो एक भरोसा जो शहने जौन के रुख पर सजाया है, उसी का फैज है जो 400 रन में उजाला है, उसी का फैज है जो 400 रन में उजाला है। और उसने अल्लाह फरमाया कि कहा खूली ने लश्कर से, कहा खूली ने लश्कर से जिधर गाजी का पहरा है, कहा खूली ने लश्कर से जिधर गाजी का पहरा है, उधर को रुख नहीं करना, उधर ज़ैनब का खैमा है, उधर को रुख नहीं करना, उधर ज़ैनब का खैमा है। और अज़ा की राह में दुश्मन ने जो कांटे बिछाए हैं,
अज़ा की राह में दुश्मन ने जो कांटे बिछाए थे, मेरी राहों का हर कांटा फरिश्तों ने हटाया है। मेरी राहों का हर कांटा फरिश्तों ने हटाया है। बस 3 शेरों का माता शेर फरमाए कि सरे तस्लीम खम रखना, निगाहों को झुका लेना। सरे तस्लीम खम रखना, निगाहों को झुका लेना। अल्लाह खाने में यूं जाना, बुजुर्गों ने बताया है। अल्लाह खाने में यूं जाना, बुजुर्गों ने बताया है। शबे आशूर मजलिस में पटी खैमे में जब जन्नत, शबे आशूर मजलिस में पटी खैमे में जब जन्नत, हुसैन इब्ने अली ने हुर का भी हिस्सा लगाया है। शबे आशूर मजलिस में पटी खैमे में जब जन्नत, हुसैन इब्ने अली ने हुर का भी हिस्सा लगाया है। हुसैन इब्ने अली ने हुर का भी हिस्सा लगाया है। तो चरागों को बुझाकर शाह ने रोशन किए सूरज, चरागों को बुझाकर शाह ने रोशन किए सूरज। शबे आशूर शहने नूर का खैमा लगाया है। शबे आशूर शहने नूर का खैमा लगाया है। और आखिरी शेर तबाह है, एक सवालिया निशान है आखिरी शेर कि खुदा जाने शहे वाला की इसमें मसलहत क्या है। शेर समझ करवाए, मैं तो आज तक नहीं समझ सका, आप में से भी जानता हूं, थोड़ी बात है कि खुदा जाने शहे वाला की इसमें मसलहत क्या थी। खुदा जाने शहे वाला की इसमें मसलहत क्या थी। जिहादे करबला ने देर तक असगर को रोका है। खुदा जाने शहे वाला की इसमें मसलहत क्या थी। जिहादे करबला ने देर तक असगर को रोका है। मैं इन्हीं अशार के साय में मोहतवाना इस्तेमाल करता हूँ। अली जनाब इस्लाम मौलाना सकी हसन साहब तशरीफ आए, सलमान रहिमल्लाहु मन क़रअल फ़ातिहा। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यब्लुगु मिदहतहुल क़ाइलून वला युहसी नअमाअहुल आदून वला युअद्दी हक़्क़हुल मुज्तहिदून। सुम्मस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला सय्यिदिल अंबियाई वल मुरसलीन
सय्यिदिना व मौलाना अबिल कासिम मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व अला अहले बैतिहिल अत्यबीनल अंजबीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स व तहहरहुम तत्हीरा। ला सिय्यमल इमामिल मुबीन बक़ियतिल्लाहि फिल अर्दीन अरवाहुना व अरवाहुल आलमीना लितुराब मक़दमिहिल फ़िदा वल्लअनतुद दाइमतुल बाक़िया अला अअदाइहिम अजमईन अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहुल हकीम फ़ी किताबिहिल मुबीन या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तजीबू लिल्लाहि वलिर्रसूल इज़ा दआकुम लिमा युहयीकुम। एक दफा मिलजुल के आप सभी अज़ा सलवात भेज दीजिए। अज़ान मोहतरम, ईसाल सवाब की इस मजलिस में आप सभी हजरात से बसत अदब इल्तिमास है कि एक दफ़ा सूरह हम्द और 3 दफ़ा सूरह तौहीद की तिलावत फरमा के मरहूम मग़फ़ूर सैयद अली अब्बास इब्ने बब्बे साहब आलम मरहूम की रूह पुरफतू को और उनके ख़ानदान के तमाम मरहूमीन को ईसाल फरमा दें। बिस्मिल्लाह। आप हजरात अगर मुनासिब समझें तो सलवात भेजते हुए कुछ आगे सिमट आइए ताकि बेहतर तरीके से अपनी बात अर्ज की जा सके। एक दफा मिलजुल के सलवात भेजिए तो आगे आ जाइए आप। और आगे आ जाइए, और आगे तशरीफ ले आइए, और आगे आ जाइए आप हजरात भी, और आगे आ जाइए, पीछे वालों को जगह मिल जाएगी। एक दफा और मिलजुल के बुलंद आवाज से सलवात भेज दीजिए। अज़ान मोहतरम, सूरह मुबारक अनफाल की 24वीं आये शरीफा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तमाम बशरियत को एक अहम तरीन पैगाम की तरफ न सिर्फ ये कि मुतवज्जे कराया, बल्कि अल्लाह ने इस पैगाम पर अमल पैरा होने के लिए तमाम इंसानों को दावत दी है। इरशाद रब्बुल इज़्ज़त है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तजीबू लिल्लाहि वलिर्रसूल, ऐ ईमान लाने वालों तुम सभी लब्बैक कहो, तुम सभी दावते परवरदिगार और दावते रसूल पर आगे बढ़ो और उनकी इस आवाज को कबूल करो। और उसके बाद इरशाद रब्बुल इज़्ज़त हुआ कि लिमा युहयीकुम, उस निदाए परवरदिगार और उस निदाए पैगंबर की तरफ तुम सब लब्बैक कहो कि जिसमें तुम सभी की जिंदगी पोशीदा है। यानी इसके माना है इंसान लब्बैक कहने से पहले निदा पर अपनी आवाज को देने से पहले जिस जिंदगी को जिंदगी समझ रहा है, अल्लाह ने उसे जिंदगी नहीं माना है। जिंदगी उसे करार दिया है कि जो अल्लाह की आवाज पर लब्बैक कहने के बाद मिल जाए।
अल्लाह के नुमाइंदे की आवाज को सुनने के बाद जब इंसान आगे बढ़े तो अब यह जिंदगी उसके पास है जो जिंदगी कहलाएगी। यूं इंसान की जिंदगी में सांस का आना जाना, इंसान की पलक का झपकना, कानों तक आवाज का पहुंचना, हाथ पैर का मुसलसल हरकत में रहना, यह तमाम वो चीजें हैं कि जो यकीनन हमारे दरमियान जिंदगी की अलामत समझी जाती हैं, लेकिन निगाह परवरदिगार में असल जिंदगी ये नहीं है। अल्लाह जब बुलाए और इंसान निदाए परवरदिगार पर लब्बैक कह के आगे बढ़े, ये जिंदगी है। अल्लाह का नुमाइंदा जब पुकार रहा हो और इंसान इस नुमाइंदे इलाही की आवाज पे लब्बैक कह ले जाए, यह असल जिंदगी है। और इसीलिए यह एक मरहला आता है कि आवाज किसके कान तक पहुंची और किसने अपनी जबान से लब्बैक कहा, ये दोनों चीजें बड़ी अहम हैं। न तो हर एक तक आवाज पहुंच पाती है, न हर एक के लिए लब्बैक कहना मुमकिन होता है। यह इंसानी मिजाज के जो समझता है कि मेरे लिए कोई मसला नहीं है, जिस आवाज को चाहूं मैं सुन ले जाऊं और जिस आवाज पर चाहूं लब्बैक कह ले जाऊं, यह इंसानी इख्तियार में नहीं है। न सबको सुनने का इख्तियार मिलता है, न सबको लब्बैक कहने का इख्तियार मिलता है। वो खुशनसीब है कि जिन्होंने अपनी आवाज को, अल्लाह की आवाज को सुनने के बाद अपनी जबान को इस्तेमाल करते हुए लब्बैक कहा और वो आगे बढ़े और फिर अल्लाह की इस आवाज पर लब्बैक कहने की बिना पर उन्हें जिंदगी मिल गई। लेकिन अब सवाल यह है कि ये निदाए परवरदिगार बंदों तक पहुंचे कैसे? निदाए परवरदिगार तो इंसानों तक पहुंचना आम मुमकिन नहीं है। आवाज है, यह पहुंचेगी बंदों तक। इस कायनात में मैं पूरी तवज्जो चाहूंगा, मैं जल्दी लिए अपने मराहिल तय कर रहा हूं ताकि असल मरहले तक आपको लेके आ जाऊं। इस कायनात में कुछ आवाजें ऐसी बुलंद हुई कि जिनका ताल्लुक तो माजी से है, लेकिन आज भी वो कायनात में गूंज रही हैं। आज भी कायनात के गोशे गोशे तक वो आवाज पहुंच रही है और उस आवाज के असरात न सिर्फ ये कि आज तक हैं, बल्कि उन आवाजों के असरात क़यामत तक बाकी रहने वाली। ये आवाजें कौन सी हैं कि जो अल्लाह की बारगाह से बुलंद हुई और कायनात के गोशे गोशे तक अल्लाह ने उन्हें पहुंचाया। और ये लफ्ज मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि इन आवाजों को अल्लाह ने पहुंचाया है। खुद आवाज के लिए खुद बखुद पहुंच जाना मुमकिन नहीं था जब तक अल्लाह की तरफ से ताईद न हो जाए और अल्लाह की तरफ से इंतजाम न हो जाए। यह आवाज सब तक पहुंच नहीं सकती। कुरान मजीद ने वो पहली आवाज का जिक्र किया कि जिस आवाज के लिए हुक्म परवरदिगार हुआ कि ऐ नबी आप इस उम्मत के लिए, इस कायनात के लिए अपनी आवाज को बुलंद फरमाएं। लेकिन वह आवाज कैसे बुलंद हुई? एक नबी परवरदिगार हैं कि जो अपने हाथों के जरिए से अल्लाह के घर की दीवारों को बुलंद कर रही हैं। वइद यरफ़अु इब्राहीम अल-क़वाइद मिनल बैत, वइद यरफ़अु इब्राहीम अल-क़वाइद मिनल बैत, जनाब इब्राहीम है कि जो इस खाने काबा की दीवारों को बुलंद कर रहे हैं और आवाज एक रब्बना तक़ब्बल मिन्ना, परवरदिगार मुझसे कबूल कर ले। यह अजीब मरहला है। हुक्म परवरदिगार का है, अमल जनाब इब्राहीम का है, तो फिर अब इसमें कबूल करने का मसला और मसला क्या है? अगर दीवारें बन चुकी हैं, अगर घर तामीर हो चुका है, अगर छत डाली जा चुकी है, तो इसमें कबूलियत का मसला क्या है? हुक्म तो परवरदिगार का है। अगर कुछ इजाफी काम होता तो उसमें यह जुमला कहा जा सकता था कि खुदा कबूल कर ले, लेकिन जनाब इब्राहीम का परवरदिगार की बारगाह में यह जुमला कहना
कि परवरदिगार मुझसे कबूल कर ले, इसके माना है अभी घर तो तामीर हुआ है लेकिन किसी का इंतजार हो रहा है। कोई ऐसी जात है कि जिनके लिए अब इंतजार है कि परवरदिगार अब उसे भेज दे ताकि मुझे मेरी कबूलियत का शरफ मिल जाए। ये घर जिस जात के लिए तैयार किया जा रहा है उनके लिए जनाब इब्राहीम की दुआ है, रब्बना तकब्बल मिन्ना, ऐ मेरे परवरदिगार हम सब से ये हमारी इबादत को, हमारे अमल को कबूल कर ले। और उसके बाद आवाज कुदरत आई, वअज़्ज़िन फिन्नास, ऐ इब्राहीम, पूरी तवज्जो चाहूंगा मैं, ऐ इब्राहीम अब लोगों के दरमियान आवाज दो। ये वो मरहला है कि जिस मरहले में जनाब इब्राहीम के मानने और चाहने वाले बड़े मुख्तसर से हैं। आवाज कुदरत आई कि ऐ इब्राहीम तुम लोगों के दरमियान इस हज के लिए आवाज दो। और अब जनाब इब्राहीम की आवाज बुलंद होने वाली है। आवाज कुदरत आई, ऐ इब्राहीम अलैकल अज़ान व अलैयल बलाग, इब्राहीम आवाज देना तुम्हारा काम है, कायनात के गोशे गोशे तक पहुंचाना मेरा काम है। आपने तवज्जो फरमाई। इसके माना है कि अल्लाह चाहे तो आवाज को कायनात के गोशे गोशे तक पहुंचा सकता है। और फिर रवायत की लफ्ज़ें हैं कि यह आवाज कहां तक पहुंची, इला अरहामिन निसा व अस्लाबिर रिजाल, वो तमाम खवातीन के जिनके शिकम में बच्चे थे उन सब तक ये आवाज पहुंची है। और अगर उन माओ तक आवाज पहुंची है जिनके शिकम में ये बच्चे हैं, तब तो कोई मसला बहुत बड़ा नहीं है, इसलिए कि ये उस जमाने के अफराद तक आवाज पहुंचानी है। लेकिन अगला लफ्ज क्या है, व इला अस्लाबिर रिजाल, ये जो मर्दों के सुल्ब में औलाद मौजूद थी, अल्लाह ने इस आवाज को उन सुल्बों में मौजूद बच्चों तक भी पहुंचाया है। सुल्ब में मौजूद बच्चों के माना यह है कि वो 10-20 साल 50 साल के अंदर दुनिया में नहीं आने वाले हैं। ये सुल्बों में मौजूद औलाद वो हैं कि जो क़यामत तक आने वाली है। यानी ये अल्लाह की कुदरत की निशानी है। अल्लाह जिस आवाज को चाहे इतनी लंबी वुसअत अता कर सकता है, इतनी ज्यादा उसके अंदर वुसअत अता कर सकता है कि कायनात में मौजूद न सिर्फ ये कि वो बच्चे जो अभी मां के शिकम में आ चुके हैं वो बच्चे आवाज को सुन सकते हैं, बल्कि जो अभी दुनिया में नहीं बल्कि अभी मां के शिकम में भी नहीं आए हैं उन बच्चों तक भी वह आवाज पहुंच सकती है। बस शर्त यह है कि अल्लाह अगर आवाज पहुंचाना चाहे। और अब यहीं से बात वाज़ेह है, जिसने उस आवाज को सुनकर लब्बैक कहा वही अल्लाह के घर की ज़ियारत करने हज बैतुल्लाह के लिए जाता है। वरना कायनात ने आवाज तो सुनी है, अल्लाह के घर की ज़ियारत की सआदत नहीं मिलती है। यह आवाज कहां बुलंद हुई है? यह आवाज अल्लाह के घर के पास खड़े होकर जनाब इब्राहीम ने बुलंद की है और कायनात तक पहुंच रही है। दूसरी आवाज यही खाने काबा के करीब, जिस मौके के ऊपर हज को मुकम्मल करने के बाद अल्लाह का नुमाइंदा परवरदिगार की बारगाह से हुक्म लेके अब आगे बढ़े हैं, एक मैदान में पहुंच चुके हैं और अब यह आवाज दी जा रही है कि जो आगे जा चुके हैं उन्हें पीछे बुलाया जाए, जो पीछे रह गए हैं उनका इंतजार किया जाए और जो सामने मौजूद हैं उन्हें ठहराया जाए, रोका जाए। अब इनके सामने अब पैगंबर को अपनी आवाज बुलंद करनी है और इस कायनात के गोशे गोशे तक वो आवाज पहुंचनी है। वो आवाज जो पहली थी वो अल्लाह के घर की ज़ियारत का शरफ दे रही थी। ये दूसरी आवाज है जो अल्लाह की बारगाह का मुकर्रब बंदा बना सकती है। लेकिन जरूरी है कि इंसान इस दूसरी आवाज को सुने और सुनने के बाद लब्बैक कहे। यह जरूरी है। यह दूसरा मरहला कौन सा है? अब पैगंबर इस्लाम ने खास तरीक़ेकार के मिंबर पे तशरीफ ले जाकर अब उस अजीम शान खुतबे को बयान फरमाया और पूरी तारीख आपकी निगाहों में है। पैगंबर इस्लाम की आवाज है। आप तवज्जो फरमाएं, ये मजमा जो मेरे सामने माशाअल्लाह से कसीर तादाद में मौजूद है,
इस मुख्तसर से मजमे, जाहिर है मुख्तसर मैंने उस कसीर के मुकाबिल कहा है, वरना माशाअल्लाह से कसीर तादाद में मोमिनीन है। इन मोमिनीन के दरमियान भी मेरी आवाज को पहुंचाने के लिए एक माइक की जरूरत पड़ी। कितना मजमा है? 1000 से बहरहाल ज्यादा नहीं हो सकते, लेकिन इसके बावजूद कि वहां 1.25 लाख का मजमा है, एक आवाज बुलंद हो रही है जो कम से कम 1.25 लाख हाजियों के कानों तक पहुंच रही है। यह आवाज का पहुंचना बता रहा है कि जब निदा अल्लाह के नुमाइंदे की बुलंद होती है तो फिर न उसको जमाना रोक सकता है, न उसको हालात रोक सकते हैं, न उसको मकान रोक सकता है। अल्लाह जहां चाहता है वो आवाज पहुंच जाती है। उस आवाज के पहुंचने में किसी किस्म की कोई रुकावट पैदा नहीं हो सकती। यह अल्लाह का इंतजाम है। और अब जब अल्लाह के नुमाइंदे ने उस खुतबे को इरशाद फरमाने के बाद अपने उस मारिकतुल आरा जुमले को मजमे के सामने पेश किया कि मन कुंत मौला हो फहाद अली मौला, यह आवाज कायनात में गूंजी तो आज से 14 सदियों पहले थी, लेकिन इस आवाज की बाज गश्त आज तक रुए जमीन पर है। आज भी कायनात के गोशे गोशे में इस आवाज पर लब्बैक कहने वाला इंसान है जो अपने को सआदतों से हमकिनार करता है। यह दूसरा मरहला, यह दूसरी आवाज थी कि जिसको अल्लाह ने सब तक पहुंचाया है और आज भी इंसानियत तक आवाज पहुंच रही है। एक आवाज तीसरी है कि जिस मरहले तक मुझे आपको लेके आना है, लेकिन इस तीसरी आवाज से पहले मैं चौथी आवाज का जिक्र करूंगा ताकि सिलसिलेवार न सही लेकिन चारों आवाजें आप तक पहुंच जाएं। एक चौथी आवाज, तीसरी मैंने बीच में रोका है कि जिसको आखिर में इसके बाद अर्ज कर रहा हूं। एक आवाज है कि जिसे इसी खाने काबा के अतराफ से बुलंद होना है। तवज्जो फरमाइएगा, यह अजीब है। अल्लाह ने जितनी आवाजों को कायनात के गोशे गोशे तक पहुंचाया है, उन आवाजों का रिश्ता खाने काबा से जरूर है। यह जो चौथी आवाज बुलंद होनी है, इस चौथी आवाज को भी परवरदिगार कायनात के गोशे गोशे तक पहुंचाएगा और इसी खाने काबा के अतराफ से आवाज बुलंद होगी। वह आवाज कौन सी होगी? एक अल्लाह का नुमाइंदा इस रूए जमीन पे आने के बाद तमाम बशरियत को अदल व इंसाफ की तरफ दावत देते हुए यह आवाज देगा कि अना बक़ियतुल्लाह फी अर्दे, मैं अल्लाह का वो नुमाइंदा कि जिसे परवरदिगार ने रूए जमीन पे महफूज रखा था, मैं अब तुम्हारे दरमियान आ चुका हूं। ये वो आवाज है कि जो आखिरी इमाम सरकार वली अस्र हजरत इमाम महदी अज्जलल्लाहु ताला फरजहु शरीफ आखिरी आवाज इमाम की बुलंद होनी है। और यह आवाज कायनात में सबके कानों तक पहुंचेगी। लेकिन अजीब है, इस आवाज को सुनकर वही लब्बैक कहेगा जिसने दूसरी आवाज पर लब्बैक कही होगी। यह अजीब है, वरना कान सबके सुन रहे हैं, सब तक यह आवाज पहुंच रही है, लेकिन इसके बावजूद सबके अंदर यह हिम्मत नहीं है कि आवाज पे लब्बैक कह सकी। मैं यहां पर रुककर एक जुमला कहना चाहूंगा। आखिर वजह क्या है? क्यों ऐसा है कि आवाज सब सुन रहे हैं लेकिन लब्बैक सब नहीं कह रहे हैं? क्यों? कोई वजह जरूर है। क्या वजह है इसकी? एक वजह तो बिल्कुल वाज़ेह सी है जो आपके जहनों में भी है। अभी हमारे दरमियान आप हज़रात तशरीफ फरमा है और अक्सर औकात ऐसा होता है कि हम लोग मजलिस के दौरान अपने मोबाइल के मसलन उसको स्विच ऑफ कर देते हैं मोबाइल का, या मसलन उसको आप जो है वो साइलेंट मोड पे लगा देते हैं। कोई भूल गया था मर्द मोमिन, मोबाइल की घंटी बजी, आवाज कितनों ने सुनी? सारे मजमे ने सुनी है, लेकिन मोबाइल का स्विच ऑन कौन करेगा? जिसका मोबाइल होगा। जिसको बुलाया जा रहा है वही तो आएगा, वरना बकिया अफराद ऐसा नहीं है कि वो लब्बैक कहते हुए पहुंच जाए। नहीं, यही सूरत हाल यहां भी है। लेकिन एक बड़ा इसका उम्दा
बड़ी इसकी उम्दा मिसाल दी है आयतुल्लाह उज़्मा नासिर मकारिम शिराजी हफिज़हुल्लाह ताला ने। बड़ी उम्दा, बड़ी दिलचस्प मिसाल दी है। आपने देखा होगा हमारे दरमियान एक खासतौर से ये नौजवान बखूबी वाकिफ हैं, बुजुर्गान, बहरहाल उनसे माजरत के साथ, ये हमारे दरमियान एक चीज पाई जाती है कि जिसको आप मकनातीस कहते हैं, मैग्नेट, जिसको हिंदी जबान में चुंबक कहा जाता है। बड़ा अजीब सा नाम है, लेकिन बहरहाल नाम है। ये जो मकनातीस है इसकी अपनी एक खासियत है। खासियत क्या है? इस मकनातीस को अगर आप सही सिमत में करार देते हुए सामने अगर आप लोहा रख दें, आयरन रख दें, तो ये उसे खींच लेगा। सही सिमत जरूरी, यहां बरक्स ना रख दें आप। सही सिमत में अगर करार दिया है तो ये खींच लेगा अपनी तरफ। आयतुल्लाह मकारिम शिराजी ने यह बात वहां पर कही कि अगर आप गौर फरमाएं तो जाहिर है कि लोहे की कीमत है, लेकिन बहरहाल लोहे की कीमत सोने से कम है। सोना क्या कीमती शय है। इसी मकनातीस के सामने आप ले आके सोना रख दीजिए, खींच लेगा उसको? नहीं खींचेगा, वो अपनी जगह पे ठहरा रहेगा। वो सोना उधर है, ये मकनातीस इधर है। यही अगर चांदी आप इसके, जाहिर है कि उसके पास हुस्न है, खूबसूरती है, जमाल है, उसके पास सफेदी है, एक अजीब किस्म है, उसके खासियत है उसकी। अगर आप इसी चांदी को इस मकनातीस के सामने करार दें तो खींचेगा? नहीं खींचेगा। क्यों? ये कशिश उसके लिए नहीं है। ये कशिश किसके लिए है? सिर्फ लोहे के लिए है। वजह क्या है? आगे का जुमला सुनेंगे। उन्होंने कहा इसकी सिर्फ एक वजह है। वजह यह है कि सोना जिस मटेरियल से बना है वो कोई और मटेरियल है, चांदी जिस मटेरियल से बना है वो कोई और मटेरियल है, वो कोई और मादा है, लेकिन जिस मादे से लोहा बना है उसी मादे से ये मकनातीस भी बना है। जिस मादे से ये मकनातीस बना है उसी मादे से ये लोहा बना है। लिहाजा नतीजा ये है, चमक इसके पास कम है, कीमत इसके पास कम है, लेकिन इसके बावजूद ये मकनातीस इस लोहे को अपनी तरफ खींच लेता है। इसके माना है जब एक मटेरियल होता है तो खुद ब खुद अपनी तरफ खींच लिया जाता है। अब आप समझे वो छठे इमाम सादिक अलैहिस्सलाम की हदीस, जो मौला ने जुमला फरमाए कि शीआतुना खुलिकु मिन फादिल तीनतना, ये हमारे शिया हैं जो हमारी बची हुई तीनत से, हमारी बची हुई मिट्टी से जिनकी खिलकत हुई है। अब आप समझे कायनात में आवाज आखिरी इमाम की सब सुनेंगे, लब्बैक सिर्फ शिया कहेंगे। वजह क्या है? इसलिए कि उसी मटेरियल से खिलकत है जिससे अल्लाह ने अहले बैत को खिलकत अता किया है। और ये रवायत मुअतबर रवायतों में है। मौला फरमाते हैं कि शियातुना खुलिकु मिन फादिल तीनतना यफरहूना लिफरहिना व यहज़नूना लिहुज़निना। शिया है जो हमारी बची हुई तीन पर ये खुश होते हैं हमारी खुशियों में और गमज़दा होते हैं हमारे गम में। आप देख लीजिए कायनात में कोई आप दिखा दीजिए ऐसा इंसान कि जो हत्ता अहले बैत था तो जाहिर है कि बहुत से नहीं मानते, खुद रिसालत माप के गम में गमज़दा आप किसी को दिखा दीजिए गैर शिया, कोई नहीं मिलेगा आपको। वो तमाम अक़वाम आलम के जो रिसालत माप के मीलाद का जश्न मुनक़िद करती हैं उनमें से अक्सर को यह पता भी नहीं है कि रिसालत माप दुनिया से गए कब। गम का तस्वुर ही नहीं है। और नतीजा यह है कि अल्लाह ने यह वाहिद कौम कि जिसकी खासियत यही है, हम अपनी खुशियों को खुशी नहीं समझते, हम अपने गम को गम नहीं समझते। वरना जिस घराने के इंतकाल की बिना पर मजलिस चेहलुम मुनक़िद हुई है, सिर्फ उस घराने के मुख्तसर से 20-25 आदमी बैठ जाने चाहिए थे। ये इतना बड़ा मजमा क्यों आया? ये इस बिना पर कि जिक्र मरहूम का नहीं सैयदुश शुहदा का हो रहा है।
कि अहले बैत अतार के गम को अपना गम समझना, यह हमारी इनफरादियत है और इसको अहमियत दीजिए। मैं इसलिए एक जुमला बीच में आ गया कह रहा हूं, बहुत सारे औकात हम लोग इन तमाम चीजों को अहमियत नहीं देते। जब कभी सुनने में आ जाए कि तारीखें शहादत की हैं और उस दरमियान भी हमारे दरमियान बर्थडे सेलिब्रेशन हो रहा है, अफसोस होता है। अभी जनाब सिद्दीक़ा ताहिरा हजरत फातिमा ज़हरा सलवातुल्लाहि व सलामुहु अलैहा आपकी शहादत की तारीखें आ रही हैं और ये दोनों तारीखें इस तरह से मोहतरम हैं कि इन दोनों तारीखों के दरमियान भी सोग मनाया जाए। हम में से कितने ऐसे हैं कि जो मिसाल के तौर शादी भी हो रही है, ठीक है, कम से कम हमें तो एहतियात करनी चाहिए। जो हमारा रिश्ता अहले बैत अतार से है वो दुनिया वालों का नहीं है, लिहाजा हमें मुकम्मल तौर के ऊपर सोग के दिनों में, अय्याम अज़ा में सोगवार रहना चाहिए। और जब अहले बैत अतार की खुशी की तारीखें हैं, मुझे याद है हमारे बुजुर्गान यहां पर मौजूद हैं, बाज औकात गदीर के दिन हमारे खानदान में भी कभी कभी ऐसा हुआ, बहुत से घरानों में, कि कोई इंतकाल कर गया, नहीं गम मनाया, गुरूब के बाद गम मनाया। क्यों? गदीर गदीर है। तो हम तो इतनी एहतियात करने वालों में से हैं, तो हम सबको इस बात का मुकम्मल ख्याल रखना चाहिए। बात आगे थी, आज़म में अर्ज कर रहा था, ये आवाज पे लब्बैक क्यों कहा? इस बिना पर कि उसी तीनत से खिलकत है कि जिस तीनत को अल्लाह ने ये शरफ दिया, कि जिस तीनत को अहले बैत अतार के लिए करार दिया, बहुत बड़ा दर्जा है जो अल्लाह ने अता किया। ये तीन आवाजें मैंने अर्ज कर दिया, और आखिरी आवाज कि जिसको सिलसिलेवार तीसरी आवाज करार देना था, मैं उस आवाज तक आपको लेके आ गया। एक आवाज और गूंजी कि जिस आवाज को परवरदिगार ने इतनी अजमत अता किया कि जो भी लब्बैक कह के इस आवाज से वाबस्ता हुआ, वह आज भी कायनात में जिंदा है। और न सिर्फ यह कि आज भी जिंदा है, बल्कि जो भी आज जिंदगी पाई जा रही है वो इसी एक आवाज पर लब्बैक कहने की बिना पे पाई जा रही है। वो एक आवाज कौन सी है? वो एक आवाज एक ऐसे मैदान से बुलंद हुई कि जिस मैदान में अल्लाह का नुमाइंदा तमाम बशरियत को आवाज दे रहा है कि हल बिन नासिरीन यंसुरना, कौन है जो मेरी मदद और नुसरत के लिए आए। और आने के बाद अब यहीं पर एक सवाल, ये जो आवाज मैदान करबला में सरकार सैयद शुहदा की बुलंद हुई, इस आवाज ने तमाम बशरियत को जिंदगी अता किया है। लिमा युहयीकुम, वो आवाज के जिसकी बिना पे तुम सबको जिंदगी मिल रही है, यह आवाज सरकार सैयद शुहदा की मैदान करबला से बुलंद हुई है। आका ने किस लिए बुलाया था? सवाल है, लम्हे फिक्रिया है और इस पर हमें गौर करना चाहिए। क्या मैदान करबला में आका ने इसलिए बुलाया था कि आ जाओ, मैदान करबला में आ जाने के बाद तुम सबको एक लंबी और तवील जिंदगी मिल जाएगी? नहीं, जबकि कुरान कह रहा है कि इस निदाए परवरदिगार में इंसानों की जिंदगी छुपी हुई है। इसके माना है, अगर इमाम मासूम की आवाज पे लब्बैक कहते हुए इंसान अपनी जान का नजराना पेश कर देता है, दुनिया समझती है कि चले गए, खत्म हो गए, निगाह परवरदिगार में वो जिंदा रहता है, उसे मौत नहीं आ सकती। और एक लफ्ज की तरफ मैं आपको मुतवज्जे कराना चाहूंगा, सरकार सैयद शुहदा ने इस आवाज में ये नहीं कहा कि आओ तुम सब मेरी खिदमत के लिए आ जाओ, लफ्ज खिदमत इस्तेमाल नहीं किया है। हल मिन नासिरीन यंसुरना, इमाम ने यह फरमाया कि कौन है जो मेरी मदद करने के, नुसरत करने के लिए आए। मैदान करबला में सरकार सैयद शुहदा ने तीन शख्सियतों के लिए खास एहतमाम फरमाया है। एक जनाब हुर के, जिनका अभी पेशखानी के मौके पर जिक्र आया, जनाब हुर के लिए खास एहतमाम कि एक शब की मोहलत इसीलिए सरकार सैयद शुहदा ने करार दी
ताकि जनाब हुर इस काफिले से वाबस्ता हो जाएं। दूसरा एहतमाम फरमाया है जनाब हबीब इब्न मज़ाहिर के लिए, खत लिख के बुलाया है और आपका इंतजार मैदान करबला में हुआ है। और तीसरी शख्सियत जनाब ज़ुहैर इब्न कैन की है कि जिनके लिए आका का एहतमाम यह है कि आप मुसलसल ये कोशिश है कि किसी तरह से ज़ुहैर इब्न कैन तक पैगाम पहुंच जाए कि आ जाओ मिलने के लिए। और जब मौका मिला है तो किसको भेजा है? असहाब मौजूद हैं, जानिसार मौजूद हैं, हत्ता गुलाम मौजूद हैं, लेकिन किसको भेजा? शबीह पैगंबर को भेजा कि जाओ जाकर जनाब ज़ुहैर इब्न कैन को बुलाओ, लेकर आओ। क्यों? ये तीन के लिए खास एहतमाम क्यों है? जनाब हुर के लिए इंतजाम, जनाब हबीब के लिए एहतमाम, खुद जनाब ज़ुहैर इब्न कैन के लिए इंतजार, ये क्यों हो रहा है? ये क्या वजह है? क्या इन सब के आ जाने की बिना पर इमाम हुसैन की जिंदगी बच जाएगी? क्या इमाम हुसैन को कुर्बानी नहीं देनी पड़ेगी? नहीं, इमाम हुसैन को तो कुर्बानी देनी है, इसलिए कि तमाम कायनात को नजात देना है। ये क्यों इमाम हुसैन इतना इंतजाम और एहतमाम फरमा रहे हैं? वजह सिर्फ एक है, न इसलिए इमाम हुसैन इंतजार कर रहे हैं कि इनके आ जाने के बाद जिंदगी में इजाफा हो जाएगा इमाम हुसैन या असहाब इमाम हुसैन या खानवादे इमाम हुसैन, नहीं, किसी की जिंदगी में इजाफा नहीं होगा, इसलिए इंतजार नहीं है कि जिंदगियां बढ़ जाएं, इसलिए इंतजार नहीं है कि कुछ फायदा मिल जाए, सिर्फ इसलिए इंतजार है ताकि ये सब भी आकर काफिले इमाम हुसैन से वाबस्ता हो जाने की बिना पर खुद इस तरह से शहादत पा जाए कि फिर इनकी जिंदगियां भी कामयाब हो जाएं। इसके माना है इमाम हुसैन जब बुलाते हैं अपने फायदे के लिए नहीं, बल्कि बुलाते हैं इसलिए ताकि बशरियत का फायदा हो जाए। एक दफा मिलजुल के सलवात भेज दें आप हज़रात। जो लब्बैक कहता है उसे फायदा मिल जाए, इमाम हुसैन इसलिए बुला रहे हैं। लेकिन अब फिर उसी लफ्ज की तरफ मैं आपको वापस लेके आना चाहूंगा। आका ने क्यों फरमाया कि मेरी नुसरत कौन करेगा? क्यों लफ्ज खिदमत इस्तेमाल नहीं किया? अच्छा, यही लफ्ज है कि जो आप वाकिफ हैं, आप हज़रात में से भी तकरीबन सभी इस जुमले को अपनी जबान पे जारी करते हैं कि अल्लाहुम्मा जअलनी मिन अंसारिही व अअवानिही। लफ्ज नासिर इस्तेमाल करते हैं आप जब आखिरी इमाम से मुताल्लिक दुआ फरमाते हैं कि परवरदिगार मुझे आखिरी इमाम के नासिरों में करार देना। खादिमों नहीं है लफ्ज। जहां जहां भी आप गौर फरमाएं, जहां जहां भी जिक्र है वहां पर नासिर लफ्ज वारिद हुआ है, खादिम लफ्ज वारिद नहीं हुआ है। वजह क्या है? इत्तेफाक यह है कि उर्दू जबान में तो उतना फर्क नहीं है, अलबत्ता अरबी जबान में बहुत बड़ा फर्क है नासिर और खादिम में। नुसरत करना और है, खिदमत करना और है। खिदमत लफ्ज वहां पर इस्तेमाल किया जाता है जहां पर इंसान सामने वाले से कुछ उसके मुकाबिल में हासिल कर रहा हो। इसीलिए आप जो अपने घरों में ये अफराद करार देते हैं, सर्वेंट्स, इनको क्या कहते हैं? खादिम कहते हैं। खादिम या खादिमा। क्यों? और तकरीबन सभी के घर में एक मुश्किल मसला आता है। आपने अपने घर में किसी काम वाले को या काम वाली को रखा है और वो खिदमत कर रहा है, कर रही है। अचानक आप 1500 देते हैं, किसी ने कहा हम 1800 देंगे। उसी वक्त उसने आपका काम छोड़ा, उनका काम शुरू कर दिया। खिदमत बदलती रहती है अगर रकम बढ़ती घटती रहे, लेकिन नुसरत का क्या आलम होता है? नुसरत लफ्ज वहां पर इस्तेमाल किया जाता है जहां शमा गुल हो जाने के बावजूद परवाने वहां से हटने ना पाए। यह है नुसरत। और यही शरफ अल्लाह ने आपको दिया है। आपको खादिम इमाम हुसैन नहीं, नासिर इमाम हुसैन बनाया है। आपको आखिरी इमाम का खादिम नहीं, आखिरी इमाम का नासिर बनाया है, ताकि आप खादिमों की तरह से वक्त के बदल जाने की बिना पर, हालात के तब्दील हो जाने की बिना पर, या मसलन रकम के बढ़ जाने की बिना पर इंसान की वफादारियां जो बदलती हैं, वो खिदमत का जज्बा नहीं बल्कि नुसरत का जज्बा होना चाहिए। और इसीलिए यह आवाज आज कायनात के गोशे गोशे तक आका की पहुंच रही है।
और अब जो लब्बैक कह रहा है वो इमाम हुसैन के इस काफिले में शामिल होता जा रहा है। मामूली बात नहीं है। वो एक वक्त था कि जिस दिन मैदान करबला में आका की आवाज बुलंद हुई थी, यक्का तन्हा अकेले इमाम हुसैन आवाज दे रहे थे, और आज उसी मैदान करबला में एक साथ करोड़ों का मजमा लब्बैक या हुसैन कहता है और यह आवाज देता है कि आका हम आपकी खिदमत के लिए आए हैं, लेकिन वो उर्दू वाली खिदमत, हम आपकी नुसरत के लिए आए हैं मैदान करबला में। यह जज्बा सिर्फ इमाम हुसैन अता कर सकती है। बस मैं आखिरी पड़ाव तक आपको लेके आ गया, मेरे पास वक्त नहीं है। हकीकत यह है कि जो एहसास कुर्बानी, जो जज्बा कुर्बानी इमाम हुसैन की बारगाह में पैदा होता है, वो दुनिया में कहीं और किसी बारगाह में पैदा नहीं हो सकता। एक छोटा सा जुमला जो वाकई की शक्ल में है आपके सामने अर्ज करके बात को मुकम्मल करूं। हकीकत यह है कि हमने महसूस नहीं किया कि इमाम की बारगाह से क्या कुछ मिल रहा है। आज जो भी इज्जत, शरफ, मकाम, मंजिलत, जो कुछ भी हमारे पास है वो आका की बिना पर है, और इसीलिए हमारे अंदर कोई अकड़ नहीं होनी चाहिए। बहुत सारे औकात हमारे अंदर भी जरा सा एहसास, मैं अगर ना आऊं तो क्या होगा, नहीं आप ना आइए मजलिस होगी, हम नहीं आएंगे शब्बेदारी कर लीजिएगा, नहीं आप ना आइए शब्बेदारी हो जाएगी। ये जो एहसास कभी कभी ये एहसास जब मजमूई इज्तिमाई शक्ल में तो और मुश्किल हो जाती है। हमारी अंजुमन नहीं आएगी, आपकी अंजुमन इमाम हुसैन की बिना पर है, आपकी अंजुमन आपकी बिना पर नहीं है। लिहाजा शख्सी मसाइल को इन इबादती उमूर में शामिल न कीजिए। जहां कहीं भी इमाम हुसैन का नाम आ जाए हम एक हैं वहां पर, फिर कोई इख्तिलाफ नहीं है। हमारे जिस्म अलग अलग हैं, हमारे खानदान अलग अलग हैं, हमारे कबीले अलग अलग हैं, लेकिन इमाम हुसैन की फर्श आज़ाद हम सबको एक पर आए हुए हैं। मैं अर्ज करूं, इमाम हुसैन की बारगाह से जो जज्बा कुर्बानी मिलता है वो हकीकतन कहीं और नहीं मिल सकता। यही ये बिरादरान, ये बुजुर्गान जो ज़ियारतों पे जाते हैं, ये बखूबी वाकिफ हैं कि एक बेहतरीन तहजीब, एक बेहतरीन कल्चर जो आज हमारे दरमियान इस अरबाइन की ज़ियारत के मौके पर उन लोगों के लिए सामने आता है कि जो मशी के जरिए से, जो इस वॉकिंग के जरिए से, जो पैदल सरकार सैयद शुहदा की ज़ियारत पर जा रहे हैं, उनके जरिए से, उनके मुशाहिदे के जरिए सामने आता है। ये बड़ा अहम है। मर्द मोमिन का बयान आप सुने, वाकईन हैरत होती है उसका बयान कि मैं गर्मी का जमाना था और शदीद गर्मी, जाहिर है कि गर्मी आप जानते हैं कि इराक की गर्मी अपने खुद एक मुस्तकिल तौर के ऊपर मुश्किलात का सबब है। उस गर्मी में जिस मौके के ऊपर वो रास्ते चलते हुए आगे बढ़ रहा था, अचानक सोचा उसने कि चले किसी मौके में आराम कर लिया जाए कुछ देर। दोपहर में शिद्दत ज्यादा है, गर्मी की हिद्दत ज्यादा है, शुआए आफ्ताब की, चले कुछ देर बैठ लिया जाए किसी मौके में। आया, दरियाफ्त किया, पता चला अंदर बिल्कुल सारे मौकिब पे बिल्कुल कोई जगह नहीं, कहीं कोई गुंजाइश नहीं। एक मौकिब, दूसरा मौकिब, तीसरा, सब गुजरता जा रहा है, हर मौकिब पे पूछा, कहीं कोई जगह नहीं, बिल्कुल भी जगह नहीं। जब काफी आगे बढ़ गया, इसने सोचा कि चलें एक काम करते हैं कि अब अंदर तो बैठकर आराम करने, इस्तराहत का मौका नहीं मिल पा रहा है, कम से कम यही बाहर बैठ के कुछ देर ही सही, यहीं बैठ के धूप ही में सही बैठ जाऊं मैं। बाहर सोफा था, उस सोफे के ऊपर ये बैठ गया, चाह रहा था कि कुछ देर के लिए तो दो चार अपनी सांस को संभाल ले और फिर उसके बाद आगे बढ़ेगा। अचानक उसने देखा कि इराकी अंदर से उठ के आया। आने के बाद तो वो भी तकरीबन धूप ही के पास बैठा हुआ था, धूप थी उसके जिस्म पे भी। उठ के आया, आने के बाद इसके करीब में खड़ा हो गया। कुछ देर गुजरी। अच्छा, आप जानते हैं जब इंसान बिल्कुल कोई करीब आके खड़ा हो तो जरा सा इंसान उलझने लगता है, बेचैनी महसूस करता है। इसने उससे टूटी फूटी जबान में, जो अभी जानता था, कुछ इशारों में, कुछ टूटी जगह है सो बैठ जाओ, खड़े क्यों? नहीं, तुम अपनी जगह बैठे रहो, मैं यहां खड़ा रहूंगा। कुछ देर और गुजरी, कुछ देर के बाद फिर उसने पूछा कि भाई क्यों खड़े हो, आ जाओ यहां बैठ जाओ, अच्छा नहीं लग रहा है तुम खड़े हो, मैं बैठा हूं। उसने कहा नहीं, तुम आराम से बैठो, तुम मेरी फिक्र नहीं करो। कुछ देर के बाद इसने झुंझला के उससे कहा,
जाहिर है कि अब जबान तो जानता नहीं है पूरी तरह से, जितना अपने जज्बात को जाहिर कर सकता था इसने झुंझला के, तुम्हारे खड़े रहने में उलझ रहा हूं, क्यों खड़े हो यहां पे, अच्छा नहीं लगा, तुम यहां आके बैठ जाओ मेरे बगल में। जवाब सुनेंगे, उस इराकी ने कहा कि मैं इसलिए तुम्हारे करीब में आकर खड़ा हूं ताकि इतनी देर ही सही तुम धूप की, तुम सूरज की शुआओं से महफूज रहो और तुम्हारे जिस्म तक गर्मी न पहुंच पाए। कौन है ये जज्बा अता करने वाला? ये जज्बा कुर्बानी कौन देगा? ये सिर्फ आका इमाम हुसैन की बारगाह है कि जो आज भी इंसानियत को मुतवज्जे करा रही है कि तुम्हें किस तरह से खिदमत करते हुए, नुसरत करते हुए आगे बढ़ना है। ये जज्बा इमाम हुसैन की बारगाह से मिलता है। एक दूसरे के लिए कुर्बानी का जज्बा अपने अंदर पैदा करना, ये इमाम हुसैन ने सिखाया है। मैदान करबला में ये अंदाज सिर्फ शुहदाए करबला का था कि मैं पहले चला जाऊं, तुम बाद में शहादत पेश करना। क्यों? ताकि मुश्किलात जो आ रही हैं उन मुश्किलात से मुताल्लिक मैं जाकर अपनी कुर्बानी पेश किए देता हूं। ये जज्बे कुर्बानी मैदान करबला में सरकार सैयद शुहदा के असहाब, वो अंसार जो मैदान करबला में थे, वो अपनी कुर्बानी पेश कर रहे थे। हाँ, लेकिन एहतिमाम इमाम हुसैन कुछ और है। इमाम हुसैन की निगाहें देख रही थी, कौन कितनी देर तक सब्र कर सकता है, किसके अंदर तहम्मुल का मादा ज्यादा है, कौन ज्यादा इम्तिहान गाह में साबित कदम रह सकता है। लिहाजा अब इंतजाम ये है कि असहाब को पहले मैदान करबला में भेजा जाए और उनके बाद फिर आइज़ा को एक एक करके मैदान करबला में भेजा जाए। लेकिन उनमें भी इंतजाम और एहतमाम है। औलाद अकील को पहले भेजा जाए, औलाद अमीरुल मुमिनीन बाद में जाए, और उनके दरमियान भी एहतमाम यह है कि भाई की औलाद पहले जाए लेकिन अपनी औलाद बाद में अपनी कुर्बानी पेश करे। अकबर तुम्हें आखिर में कुर्बानी पेश करना है, अली असगर तुम्हें आखिर में कुर्बानी पेश करना है। लेकिन एक जुमला कहने को दिल चाहता है, न जाने कितना भरोसा आका को उस नन्हे मुजाहिद पर था कि जो बज़ाहिर मैदान करबला में सबसे ज्यादा कमसिन है, लेकिन सबसे आखिर में मैदान करबला में उसमें उसे इमाम हुसैन लेकर आए हैं। न जाने असगर पे कितना भरोसा है। ए बेटा असगर, मैं तुम्हें सबसे आखिर में मैदान करबला में लेके आऊंगा। लेकिन अजीब अंदाज है, हुसैन मैदान करबला की तरफ बढ़ रहे हैं, हाथों के ऊपर वो छोटा सा एक नन्हा सा वजूद है कि जिसको दुश्मन परान समझ रहे हैं। हुसैन अली असगर को लेके मैदान करबला की तरफ बढ़ रहे हैं। अब जब मैदान करबला में हुसैन ने कदम रखा, फरमाते हैं कि अमा तराउनहु कैफ यतलव्वा, क्या नहीं देख रहे हो कि ये छोटा सा बच्चा किस अंदाज में प्यास की बिना पे मुनकलिब हो चुका है। आजादारों, ये लफ्ज तलज्जा वो है कि जिसके हक को उर्दू जबान में अगर अदा करना हो तो वजाहत जरूरी है। सुनेंगे आजादारों, ये लफ्ज तलज्जा जो आका ने मैदान करबला में इस्तेमाल किया, ये मछली के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जब किसी मछली को पानी से निकाला जाए तो उसकी मुख्तलिफ कैफियतें होती है। जब ये पानी से निकल के बाहर हो तो इसकी पहली कैफियत ये होती है कि ये जमीन से बुलंद हो रही होती है, उछल रही होती है, और फिर जमीन पे आने के बाद अपनी जगह पे तड़प रही होती है। लेकिन कुछ ही देर के बाद अब जब उसकी ताकत घटने लगती है तो अब ये बुलंदी की तरफ तो नहीं आती है, लेकिन हाँ, जमीन ही के ऊपर लेटे हुए ये तड़प रही होती है। लेकिन इसके बाद का तीसरा मरहला वो होता है कि जिस मरहले में आने के बाद अब न बुलंद होने की ताकत है, न तड़पने की ताकत है, बल्कि ये मछली कभी अपने मुंह को खोलती है, कभी अपने मुंह को बंद कर लेती है। इसी कैफियत को तलज्जा कहते हैं। आका मैदान करबला में फरमा रहे, मेरे बच्चे को देखो ये किस तरह से तड़प रहा है, ये प्यास की शिद्दत है, कभी अपना मुंह खोल रहा है, कभी अपना मुंह बंद कर रहा है। आजादारों,
करो, मैदान करबला में कयामत आ गई। दुश्मन भी अपने चेहरे को छुपा छुपा के न जाने क्यों गिरिया कर रहा था, लेकिन इधर फजाओं में एक सनसनाता हुआ तीर चला। फनकलब सबियो अला यदिल इमाम, इमाम के दस्ते मुबारक पे ये नन्हा सा बच्चा मुनकलिब हो गया। हुसैन की तरफ चेहरा है, अली असगर मुस्कुरा रहे हैं। हुसैन इस मैदान करबला में अकेले खड़े हुए न जाने किसे किसे याद कर रहे होंगे। ए बाबा, अली असगर का इम्तिहान हुसैन ने दिया है। ए मादरे गिरामी, हुसैन ने अली असगर का इम्तिहान दिया। हाँ, हुसैन मैदान करबला से वापस पलटे। बस आखिरी जुमला ज़रो, इमाम हुसैन अब जो मैदान करबला से वापस पलट रहे हैं, जिसने अली अकबर का जनाजा उठाया उसके कदम न रुके, जिसने और मोहम्मद के जनाजे उठाए कदम न रुके। न जाने असगर के जिस्म में कितना वजन था, हुसैन के कदम साथ नहीं दे रहे हैं। कभी आगे जाते हैं, कभी पीछे आते हैं। इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। ए अली असगर, तुम्हारा जनाजा हुसैन से नहीं हुआ। अला लअनतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन व सयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लबी यनक़लिबून इलाही बिहक़्क़िज़ ज़हरा व अबीहा व बालिहा व बनीहा व सिर्रिल मुस्तौदअ फ़ीहा अन तुसल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। परवरदिगार, हम सभी के आका और मौला के ज़ुहूर में ताजील फरमा। परवरदिगार, हम सभी को हजरत के खिदमत गुजारों में शुमार फरमा। परवरदिगार, वो तमाम मुमिनीन और मुमिनात जो परेशान हाल हैं, उनकी परेशानियों को दूर फरमा। परवरदिगार, जिस मर्द मुमिन के इसाले सवाब की मजलिस है, उनके दरजात को बुलंद से बुलंदतर फरमा। परवरदिगार, मरहूम और मरहूम के खानदान के तमाम मरहूमीन को इमाम हुसैन का मेहमान करार फरमा। परवरदिगार, हम सभी को आक़िबत बखैर फरमा। शब अव्वल क़ब्र सरकार अमीरुल मुमिनीन की ज़ियारत और शफ़ाअत नसीब फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। आप सभी अज़ा से इल्तिमास एक दफा फिर से सूरह हम्द और सूरह तौहीद की तिलावत फरमा के मरहूम मग़फ़ूर सैयद अली अब्बास इब्ने बब्बे साहब मरहूम की रूह पर फतू को और उनके खानदान के तमाम मरहूमीन को ईसार फरमा दें। बिस्मिल्लाह। माधवी हुसैन सकीना
बाबा ना रहे मेरे बाबा ना रहे मेरे बाबा ना रहे मैंने कर दी सकीना मैं शहजादी थी बल्कि है बात दो आलम की मैं शहजादी थी बल्कि है बात दो आलम की मैं शहजादी थी बल्कि है बात दो आलम की मैं शहजादी थी आज दुश्मन है जमाना मेरे बाबा न रहे मैंने करती थी सकीना मेरे बाबा न रहे मेरी आँखों में न देखे थे किसी ने आंसू मेरी आँखों में न देखे थे किसी ने आंसू मेरी आँखों में न देखे थे किसी ने आंसू मेरी आँखों में न देखे थे किसी ने आंसू अब मुक़द्दर में है रोना मेरे बाबा न रहे मैंने करती थी सकीना मेरे बाबा न रहे मैं जो रोती हूँ लगाते हैं तमाचे आदा मैं जो रोती हूँ लगाते हैं तमाचे आदा मैं जो रोती हूँ लगाते हैं तमाचे आदा मैं जो रोती हूँ लगाते हैं तमाचे आदा
बहन करती थी सकीना, मेरे बाबा न रहे। काश असगर की जगह मौत मुझे जाते, काश असगर की जगह मौत मुझे जाते, काश असगर की जगह मौत मुझे न रहे। बहन करती थी सकीना, मेरे बाबा न रहे। मैंने खुद देखा तीरों पर मुअल्लक़ लाशा, मैंने खुद देखा है तीरों पर मुअल्लक़ लाशा, मैंने खुद देखा है तीरों पर मुअल्लक़ लाशा, मैंने खुद देखा है तीरों पर मुअल्लक़ लाशा। मैं न रह पाऊंगी जिंदा, मेरे बाबा न रहे। बहन करती थी सकीना, मेरे बाबा न रहे। होश में आए जो सज्जाद तो बच्ची ने कहा, होश में आए जो सज्जाद तो बच्ची ने कहा, होश में आए जो सज्जाद तो बच्ची ने कहा, होश में आए जो सज्जाद तो बच्ची ने कहा, देखिए चल गया पुरखा, मेरे बाबा न रहे। बहन करती थी सकीना, मेरे बाबा न रहे। मेरे आंसू अभी साहिल से पलट आएंगे, मेरे आंसू अभी साहिल से पलट आएंगे, मेरे आंसू अभी साहिल से पलट आएंगे, मेरे आंसू अभी साहिल से पलट आएंगे। उनको मालूम जो होगा, मेरे बाबा न रहे। बहन करती थी सकीना, मेरे बाबा न रहे। दर्द उठता है कानों में, तड़प जाती हूँ, दर्द उठता है जो कानों में, तड़प जाती हूँ, दर्द उठता है जो कानों में, तड़प जाती हूँ, दर्द उठता है जो कानों में, तड़प जाती हूँ। इससे बदलाव करूँगा, मेरे बाबा न रहे। बहन करती थी सकीना, मेरे बाबा न रहे। एक
से कहा करती थी। एक बच्ची परिंदों से कहा करती थी। एक बच्ची परिंदों से कहा करती थी। एक बच्ची परिंदों से कहा करती थी। जाके सुबह से न कहना मेरे बाबा न रहे। मैंने करती थी सकीना मेरे बाबा न रहे। मुझको मालूम है रो के मैं मर जाऊंगी। 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 लाख दे कोई दिलासा मेरे बाबा न रहे। मैंने करती थी सकीना मेरे बाबा न रहे। कोई जावे तराई पर तड़प जाता था। 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 अभी कहती थी सकीना मेरे बाबा न रहे। मैंने करती थी सकीना मेरे बाबा न रहे। وبركاته